फ्रेंड्स, आज हम आर्गेनन के एफोरिज्म 4, 5 और 6 के विषय में जानेंगे। हम पहले जान चुके हैं फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन क्या है आर्गेनन के एफोरिज्म 1 में। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम यह भी जान चुके हैं कि ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट कौन है आर्गेनन के एफोरिज्म 2 और 3 के अंतर्गत। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम जानेंगे कि बीमारी को कैसे जाना जाता है। एफोरिज्म 4 के अंतर्गत हैनीमन हमें बताते हैं, He is likewise a preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease, and how to remove them from persons in health. आइए इसे समझने का प्रयास करें। हम जान चुके हैं कि आपके डॉक्टर का उद्देश्य आपको कम से कम समय में सौम्य तरीके से निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार अस्थायी स्वास्थ्य लाभ करवाना है। अब आगे हैनीमन हमें बताते हैं कि आपका डॉक्टर प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ भी है, अर्थात आपके स्वास्थ्य का संरक्षण करना भी आपके डॉक्टर का कर्तव्य है। इसके लिए उसे उन कारणों जिनकी वजह से हमें बीमारी होती है तथा उन सभी कारणों को दूर कैसे किया जाए इसका बखूबी ज्ञान होना चाहिए। आर्गेनन के एफोरिज्म 5 में हैनीमन बताते हैं, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग काज ऑफ द एक्यूट डिजीज, as also the most significant points in the whole story of the chronic disease to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual function, etc. are to be taken into consideration. आइए इसे समझने का प्रयास करें। एक्यूट डिजीजेज में डॉक्टर के लिए उपयोगी और रोगी को क्योर करने में मददगार उन कारणों की जानकारी होती है जो अधिकतर एक्यूट डिजीजेस को प्रारंभ करने व फैलने में सहायक होते हैं। क्रॉनिक डिजीजेस में उस बीमारी के प्रारंभ से वर्तमान तक जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसे हम केस हिस्ट्री कहते हैं, जिससे उस क्रॉनिक डिजीज का मूल कारण अर्थात क्रॉनिक मियाज्म को पहचाना जा सके, रोगी का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, रोगी का नैतिक व बौद्धिक चरित्र, रोगी का व्यवसाय, रहन सहन और आदतें, सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते, रोगी की उम्र व उसका यौन क्रियाकलाप आदि, इन सब बातों पर गौर किया जाना चाहिए। आर्गेनन के एफोरिज्म 6 में हैनीमन बताते हैं, The unprejudiced observer, well aware of the futility of transcendental speculations, which can receive no confirmation from experience, be his powers of penetration ever so great, takes note of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and of the mind, morbid phenomena, accident, symptoms, which can be perceived externally by means of the senses. That is to say, he notices only the deviations from the former healthy state of the now diseased individual,
which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. All these perceptible signs represent the disease in its whole extent. That is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease. I know not, therefore, how it was possible for physicians at the sick bed to allow themselves to suppose that, without most carefully attending to the symptoms and being guided by them in the treatment, they ought to seek and could discover only in the hidden and unknown interior what there was to be cured in the disease, arrogantly and ludicrously pretending that they could, without paying much attention to the symptoms, discover the alteration that had occurred in the invisible interior and set it to the rights with unknown medicines, and that such a procedure as this could alone be called radical and rational treatment. Is not then that which is cognizable by the senses in the diseases, through the phenomena it displays, the disease itself in the eyes of the physician, since he never can see the spiritual being that produces the disease, the vital force. Nor is it necessary that he should see it, but only that he should ascertain its morbid actions, in order that he may thereby be enabled to cure the disease. What else will the old school search for in the hidden interior of the organism as a prima causa morbi, which they reject as an object of cure and contemptuously despise the sensible and manifest representation of the disease, the symptoms, that so plainly address themselves to us. What else do they wish to cure in disease but these? The physician whose researches are directed towards the hidden relations in the interior of the organism may daily err, but the homeopathist who grasps the requisite carefulness the whole group of symptoms possesses a sure guide, and if he succeed in removing the whole group of symptoms, he has likewise most assuredly destroyed the internal hidden cause of the disease. आइए इसे समझने का प्रयास करें। आपका डॉक्टर अनबियास्ड ऑब्जर्वर होता है। वो ज्ञान, तर्क या समझ से बाहर की अटकलों की व्यर्थता को भली भांति जानता है। ऐसी अटकलें जिनकी के अपने अनुभव से पुष्टि नहीं की जा सकती, चाहे ज्ञान चक्षु कितने ही तेज हों। महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक केस में रोगी के शारीरिक व मानसिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के अतिरिक्त अन्य का संज्ञान नहीं लेना है। सिर्फ अस्वस्थ क्रियाएं, दुर्घटनाएं व लक्षण जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, अर्थात वो चीजें, वो परिवर्तन जो उसके स्वस्थ होने की दशा से भिन्न हो गए हैं वर्तमान में जब वो बीमार है। जो रोगी स्वयं महसूस करता है उसके परिवारीजन, पड़ोसी व मित्र भी बताते हैं तथा डॉक्टर स्वयं नोटिस करता है। ये परिवर्तन जिन्हें देखा और महसूस किया जाता है, बीमारी के जाने जा सकने वाले वास्तविक स्वरूप को संपूर्णता से बयान करते हैं। ऐसी स्थिति में यह समझ से परे है कि डॉक्टर लोग चिकित्सा हेतु रोगी के लक्षणों का बहुत सतर्कता पूर्वक अध्ययन कर इससे मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना ही वे शरीर के अंतरतम में छिपे अनजाने परोक्ष व आंतरिक वस्तुचित
जिसका इलाज किया जाना है कि संकल्पना कर लेंगे, जान लेंगे तथा अनजानी औषधियों से इसे ठीक भी कर देंगे। और एकमात्र सिर्फ यही परिपूर्ण श्रेष्ठ विज्ञान सम्मत चिकित्सा है, यह मानना मात्र घमंडपूर्ण व हास्यास्पद है। किसी रोगी में उसके रोग के विषय में जो कुछ हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख, महसूस व अनुभव कर सकते हैं, जो अंतरतम में बीमार जीवनी शक्ति जिसे देख सकने में हम सक्षम नहीं हैं, के महत्वपूर्ण सिग्नल हैं हमारे लिए। वस्तुतः व्यवहारिक रूप से यही वास्तविक बीमारी है जिसे विज्ञान सम्मत कहलाने वाला चिकित्सा विज्ञान नकारता है और रिसर्च के नाम पर गूढ़ संकल्पनाएं करता है, परिणाम स्वरूप सदैव गलतियां करता है। किंतु होम्योपैथिक सिद्धांतों पर चलने वाला चिकित्सक लक्षणों के रूप में जीवनी शक्ति से प्राप्त महत्वपूर्ण सिग्नल्स से मार्गदर्शित होकर बीमारी के समूल नाश करने में सक्षम और सफल होता है। जब उसने रोगी के समस्त रोग लक्षण दूर कर दिए तो अंतरतम में अदृश्य बीमारी भी पूर्ण रूपेण दूर हो चुकी होती है। आइए संक्षिप्त में इसे समझने का प्रयास करें। डिजीज इज डिसईज और डिस्कम्फर्ट। रोगी जब स्वस्थ था और जब बीमार है, इन दोनों अवस्थाओं पर ध्यान देंगे तो हमें केस हिस्ट्री मिलेगी जो पूर्ण रूप से बीमारी की जानकारी है। होम्योपैथी में इसी आधार पर रोगी के आने पर अविलंब उचित चिकित्सा प्रारंभ हो जाती है। किंतु आधुनिकतम वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति जांच रिपोर्ट आने तक रोगी को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगी और एक के बाद एक नित नई जांचें तब तक होंगी जब तक बीमारी के नाम का पता न चल जाए। बीमारी का नाम पता लगने पर उनका वास्तविक इलाज शुरू होगा। फिर यह पता करने हेतु जांचें होती रहेंगी कि इलाज से कितनी प्रोग्रेस हो रही है। आज इतना ही। थोड़ा कहा, समझना बहुत। होम्योपैथी एज द जनरल रूल, एलोपैथी एज ए लास्ट रिजॉर्ट। होम्योपैथी safer and superior medicine. Use homeopathy, stay healthy and improve your immunity. यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाएं ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप होम्योपैथी में क्या जानना चाहते हैं। मैं उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। चैनल को अधिकतम लोगों के लिए उपयोगी बनाने के लिए अपने सुझाव लिखें। वीडियो को धैर्यपूर्वक अंत तक देखने के लिए आभार और धन्यवाद।